Assalamu alaikum, dear students. Let's welcome you once again. Yesterday we discussed this introduction to coordinate geometry. In that we discussed what are coordinates. These here are the address points. What are x and y axes? These are the horizontal and vertical lines. And what is coordinate system? These coordinates with this coordinate axis, this together are included in this coordinate system. And when all these concepts, that is coordinates, coordinate system, these coordinate axes are together, are used in geometry, this is known as coordinate geometry. So dear students, yesterday we discussed a mathematician, a great mathematician, French mathematician, namely as René Descartes. This whole idea was given by René Descartes, and that is why this system is also known as Cartesian coordinate system, after his name. This system is also known as Cartesian coordinate system. So this name is given after the name of that great mathematician René Descartes. Now today we are going to learn what are quadrants. Now these are ideas, the idea of this great mathematician, that is René Descartes. When we introduce here, to locate the position of a point in a plane, we draw two mutually perpendicular axes. Yesterday आपने ये देखा कि हमने इस आइडिया को विजुअलाइज करने के लिए हमने क्या किया कि हमने दो एक्सिस प्लेन पे ड्रा किए. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस. These are two mutually perpendicular. Mutually perpendicular means when they intersect here at 90. And the point of intersection is known as origin or reference point. This is known as the reference point. Now to locate any point on this plan, we locate that point according to this reference point. Now today we are going to learn these quadrants. For that you must know these coordinate axes, x axis and y axis. Now जब हम किसी भी प्लेन पे ये एक्सिस ड्रा करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, और these two mutually perpendicular lines जब हम ड्रा करते हैं किसी प्लेन पे, तो ये उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है. किसी भी प्लेन पे जब हम ये टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं और उस प्लेन को ये लाइंस 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड दोज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड एज quadrants. This is part first. This area from this line and this line, ये जो एरिया है ये टोटल एरिया, ये एक पार्ट है, and this part is known as quadrant, and we call it as quadrant first. और ऐसे ही ये सेकेंड पार्ट है, and this part is also known as quadrant, but we are giving it a name that is quadrant second. And third part, this is known as quadrant third, and this is quadrant fourth. तो हम क्या करते हैं, हम रेनी डिकार्ट्स का जो आइडिया वो फॉरवर्ड करके, वो जो उसने विजुअलाइज किया यहाँ पे एक पॉइंट की लोकेशन बाय यूजिंग दैट आइडिया, उस आइडिया को हम जब यूज करते हैं तो हम एक प्लेन पे क्या करते हैं, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करते हैं. उन लाइंस को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं. तो जब भी हम वो लाइंस ड्रा करते हैं, हमारे पास या वो उस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो एक पार्ट या ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट, एंड दे आर गिवन देन different separate names. This is quadrant first, quadrant second, quadrant third and quadrant fourth. Now अब समझना यहाँ पे ये है कि ये जो quadrants है
what are the values, what will be the values, what are the signs of these quadrants. ये जो quadrant फर्स्ट हमारा होता है, कल मैंने आपको ये बताया कि जब हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, इस ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो इस ओरिजिन के जो लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज होते हैं, दीज आर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज. फ्रॉम हियर दीज आर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज. These values are all positive values. And जब हम इस जीरो से above y axis जाते हैं, above y axis, these are also positive values. These are also positive values. So these values are positive. And अगर हमें अब इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट या इसकी साइंस देखनी है, इन नंबर्स इसका साइन देखना है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव साइन है, इस साइड में भी क्या है, पॉजिटिव साइन है. तो जो भी पॉइंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा. तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस ऑर्डर्ड पेयर दैट इज एक्स एंड वाई, उन दोनों के जो साइंस होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पे. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी कोई ऑर्डर्ड पेयर आपको रिप्रेजेंट करना है जिनका साइन दोनों का पॉजिटिव होगा, तो वो पेयर ऑलवेज लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. यू कैन हियर सी कि यहाँ पे भी एक्स एक्सिस, यहाँ पे इस साइड में पॉजिटिव वैल्यूज हैं, वाई एक्सिस इस ओरिजिन के अबव वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं. तो ये होल वैल्यूज आर पॉजिटिव. सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट, these together these both are positive in the first quadrant. Now talking to second quadrant, अब second quadrant में आप देखोगे यहाँ पे क्या है. अगर हम इस quadrant की बात करेंगे तो ये पोर्शन आता है इस quadrant में. इस पोर्शन में क्या होता है, ये जो y एक्सिस है from this to above y axis these values are positive. अभी आपने देखा ये पॉजिटिव वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5. एंड इसका जो पोर्शन है बिलो क्या है, यहाँ पे x एक्सिस है, बट दीज आर नेगेटिव वैल्यूज. दिस इज नेगेटिव x एक्सिस. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इज नेगेटिव x एक्सिस एंड दीज आर नेगेटिव वैल्यूज हियर. दीज आर नेगेटिव वैल्यूज हियर. तो इस क्वाड्रेंट में अगर आपको साइंस कोऑर्डिनेट्स का साइन देखना है तो आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा. वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव. इसको आप अच्छे से देखोगे और याद भी रखोगे. दीज वैल्यूज, द वैल्यूज ऑफ एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट इन क्वाड्रेंट सेकंड इज ऑलवेज नेगेटिव and here y coordinate is always positive. So अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लोकेट करना होगा जिसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा क्वाड्रेंट सेकंड में. द पॉइंट हैविंग x coordinate negative and y coordinate positive will always lie in this second quadrant. Now अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे. ये जो थर्ड क्वाड्रेंट आपका है, अब हम इसकी बात करेंगे. इस थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो ये एक्सिस, दिस इज नेगेटिव, ऊपर लिखा है दिस इज नेगेटिव एक्सिस. एंड अगर आप ये y देखोगे बिलो दिस ओरिजिन, ये y एक्सिस और ये जो वैल्यूज हैं दीज आर आल्सो नेगेटिव वैल्यूज. अगर आपको इस पोर्शन में आप देखोगे ये वैल्यूज भी नेगेटिव है, y एक्सिस के वैल्यूज भी नेगेटिव है, तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x कोऑर्डिनेट भी आपका नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी आपका नेगेटिव होगा. तो इन थर्ड क्वाड्रेंट योर x कोऑर्डिनेट इज आल्सो नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट दैट इज आल्सो नेगेटिव. तो अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट लोकेट करना होगा जिसका x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो दैट पॉइंट बिना सोचे, मतलब आपको ये समझना है कि वो बिना अपना टाइम वेस्ट करे आप डायरेक्टली कह सकते हो कि वो पॉइंट लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में.
the point having x coordinate as well as y coordinate both are negative, so that point will always lie in this third quadrant. And coming to quadrant fourth, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे पहले, this is x axis and all values are here positive, and this is y axis, all values are negative, this y is negative and x is positive. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव, एंड जो आपका y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे y के वैल्यूज, y एक्सिस के वैल्यूज, दीज आर नेगेटिव. सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें क्या होता है, आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपका नेगेटिव. सो इन दैट वे यू कैन रिकॉग्नाइज, you can locate the points on this Cartesian plan or this coordinate plan by remembering this, that in quadrant first your x is positive and your y is always positive. In quadrant second your x is always negative and your y is always positive. तो अगर आपको ऐसे, सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, अगर आपको ऐसा पॉइंट लोकेट करना है 2, 4 जिनका साइन, x का भी साइन, इसका भी साइन पॉजिटिव है, पहला नंबर x का वैल्यू होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा नेगेटिव ये y कोऑर्डिनेट होता है. तो अगर इन दोनों का साइन प्लस है तो ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे. अब लाई कैसे होंगे, ये x कोऑर्डिनेट 2 है तो ये 2 है, एंड y कोऑर्डिनेट इसका 4 है, इस फ्रॉम 2 you will move towards y axis, that is the value of y axis, that is 4. So this is your point 2 and 4. This is your point 2, 4. Positive both है तो they both will lie in quadrant first. अगर आपको अब ऐसा वैल्यू यहाँ पे दिखाना होगा जिसका x सपोज नेगेटिव है -3 और y इसका क्या होगा 2 रखेंगे यहाँ पे -3, 2, तो आप देखोगे ये जो पॉइंट है मैंने अभी बताया सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, दैट इज -3, ये -3 है आपका, और y कोऑर्डिनेट क्या है 2, दैट इज पॉजिटिव, तो ये 2 है. सो दिस इज योर पॉइंट -3 and 2. सो द पॉइंट having x coordinate negative and y coordinate positive will always lie in quadrant second, and in the same way the point having both coordinates negative -3, -2, so that point will always lie in this quadrant third. Here -3 is here, x axis that is -3 and y axis का value क्या है -2, so this is -2, so this will be your point -3 and -2. तो याद रखोगे जो भी आपका पॉइंट होगा अगर उसके बोथ कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंड अल्टीमेटली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट यू आर हैविंग दोज पॉइंट्स हैविंग x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दैट इज सपोज अगर ये हमें शो करना होगा पॉइंट 2, -3, तो ऐसे पॉइंट्स हम क्वाड्रेंट 4 में दिखा सकते हैं, दैट इज दिस इज x एक्सिस का वैल्यू +2 है, दिस इज +2, एंड इन द सेम वे इसका जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज -3, सो दिस इज योर -3, सो हियर विल बी योर पॉइंट, दिस पॉइंट 2, -3. So in this way you can remember and recognize the points on a plan in this Cartesian plan. And once again this whole system, this coordinate system, this whole system was given by this French mathematician René Descartes, and this whole system is also known as Cartesian coordinate system. So in next lecture we will discuss our exercises.